हाय देयर, क्या आप भी अपनी यूपीएससी की जर्नी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के साथ कर रहे हैं बट आर विटनेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि थ्योरी समझ में ना आना, स्कॉलर्स के नाम ना याद रख पाना, या फिर जो जनरल अपडेट्स है विद रिगार्ड टू द ऑप्शनल उनके साथ कोप ना कर पाना। ऐसे कई प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने विटनेस की थी एंड इन्हीं को रिजॉल्व करने के लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का कोर्स, जो कि प्रोवाइड करता है होलिस्टिक कंटेंट वीडियोस एज वेल एज पीडीएफ्स, साथ ही में आंसर राइटिंग एंड इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स आल्सो। इनफैक्ट इसी कॉम्प्रिहेंसिवनेस के थ्रू हमने क्रिएट किए हैं टॉपर्स लाइक आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन एंड आईपीएस राघवेंद्र शर्मा। What is more, ये कोर्स बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, स्टार्टिंग एट ओनली ₹12,000। इस कोर्स की डिटेल्स आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, तो वेस्ट मत कीजिए और टाइम, आइए एंड ज्वाइन कीजिए द स्लीपी रेवोल्यूशन एंड मेक योर PSIR ड्रीम्स कम ट्रू। Hello aspirants, this is Sanskriti Somani. I have secured rank 49 in CSE 2022. In this video, I will be sharing the strategy of my optional, that is PSIR. To give a brief introduction of myself, this was my third attempt and second mains. In my first mains, which was in my first attempt, I secured 255 marks in PSIR, and this year I improved it to 289. So I'll be trying to share some things that I have done that have helped me to improve my marks. So other than that, मेरा पहले से कोई भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं था. आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट from IIT BHU. So this was the first time that I was studying any humanities subject. So first thing that I did in this journey was to choose the right optional. That was right for me. So for choosing the right optional, I kept 2-3 things in my mind. Like first is I saw the syllabus of all the optionals that is provided by the UPSC and saw which optionals are like seemingly interesting to me. Then by just seeing the optionals, like I knew that I don't want to do zoology or botany, something like that. So some optionals were eliminated in the first round. Then I got it narrowed down by looking into the previous trends of how people are scoring or how much material or guidance is available for a particular optional. Then after that I narrowed down to 3 optionals, and then I brought the notes of those 3 optionals and read just like 1 or 2 topics from all those 3 optionals, and also saw the previous year question papers of those optionals. By looking at all these things, I narrowed it down to PSIR, which I think was the right choice because it was due to PSIR that I could secure this rank. So choosing the optional is very important. It took me around 15 days to choose the optional, because the overall time that you give to your optional is around 50% of your whole preparation. So make sure कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे, थोड़ा मार्क्स भी आए, गाइडेंस भी अवेलेबल हो, ऐसे सब चीज़ों का थोड़ा बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा GS से ओवरलैप भी हो. Then it's also up to your comfort. If you think that your parameters are something different, you can go for that. So now starting with PSIR optional. So in 2020 mains, I secured 255 marks. That is 111 in paper 1 and 144 in paper 2. Then in 2022 mains, in which I got selected, I got 146 in paper 1 and 143 in paper 2. So paper 2, I know that both the times I have got the things right, so I focused more on paper 1 this time, but I will be trying to share both strategies with you. And so first is you get NCERTs of 11-12, the political science NCERTs that help you to build the basics. It helps the beginners like me who had no exposure to humanities. And मतलब NCERTs तो आपको GS के लिए भी पढ़नी है वैसे भी. Then second thing, and this is the most important, the base material of yourself is class notes. So I was a classroom student at Subraranjan IAS, so I used their class notes. It's up to you to use to be their classroom student or not, to use their online or offline mode. It's all up to you. मैंने उनकी classroom classes की थी, वो class notes मेरा base material था. Then एक website है Politics for India website, मैंने वो use की gaps fill करने के लिए. Gaps कैसे fill किए, देखा कि क्या सिलेबस के पॉइंट्स मेरे नोट्स में कवर्ड नहीं है, वो सब मैंने पॉलिटिक्स फॉर इंडिया वेबसाइट है, एक फ्री वेबसाइट है, वहां से यूज किया. इन सब का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मेरे ही नाम से है मेरा टेलीग्राम चैनल.
सो देन द थर्ड थिंग आई डिड वाज द वैल्यू एडिशन. आपका बेस मटेरियल रेडी हो गया, आपने सिलेबस के सारे की पॉइंट्स जितने भी सिलेबस में अगर लिखा है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स अप्रोचेस, तो हमें देखना है हमारे नोट्स में वो पॉइंट है या नहीं. देखना है कि श्री औरबिंदो, महात्मा गांधी, अंबेडकर सबकी थ्योरीज हैं या नहीं. अगर नहीं थी मेरे नोट्स में तो फिर मैंने वो पॉलिटिक्स फॉर इंडिया वेबसाइट से गैप फिल कर लिया. ये सब करने के बाद अब आती है वैल्यू एडिशन, क्योंकि इतनी चीजें सब लोग करते हैं, तो हमारे आंसर्स को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए मैंने वैल्यू एडिशन किया. इसके लिए मैंने कोई अकेडमिक्स बुक रेफर नहीं की, क्योंकि आई न्यू कि मैं उनसे नहीं पढ़ पाऊंगी. सो आई मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं, यू कैन स्किप दोज अकेडमिक बुक्स. सो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी शिवरंजन IAS पे ही. वहां जो टेस्ट होता था उसका जो टॉपर, जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले होते थे, उनकी कॉपीज में देखती थी कि अच्छा उन्होंने क्या नया लिखा है. और उसमें अगर मुझे कोई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाता था कि उन्होंने कोई फेडरलिज्म का टॉपिक है, उससे कोई एग्जाम्पल जो भी करंट अफेयर्स में हो रहा है उसको लिंक किया, या कोई दूसरी थ्योरी, नई थ्योरी जो मैंने नहीं पढ़ी थी उन्होंने लिखी है, तो मैं वो अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी वो चीजें. इस तरह से वैल्यू एडिशन किया. सेकेंड थिंग वॉज जो PSIR में, UPSC में जिन्होंने टॉप किया है, लाइक मैंने उत्कर्ष द्विवेदी सर है जो AIR 5 था जिनका 2021 में, ही स्कोर्ड मोर देन 300 मार्क्स. सो मैंने उनका ब्लॉग रेफर किया, उनके ब्लॉग का लिंक मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है. प्लस उनकी कॉपीज काफी ज्यादा रेफर की मैंने, मतलब 2 से 3 बार 2022 वाले अटेम्प्ट में उनकी कॉपीज पढ़ी थी. उसमें से एज इट इज चीजें अपनी नोट्स में ऐड की और देखा कि वो कैसे आंसर्स में इंट्रो लिख रहे हैं, वो कैसे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट ला रहे हैं एक सिंपल से क्वेश्चन में भी, उससे उनका मैटर 2 पेजेस का भी हो रहा है, प्लस उससे उनको वैल्यू एडिशन भी मिल रहा है, दूसरों से अलग भी हो रहा है आंसर विद द सेम कंटेंट दैट एवरीवन इज हैविंग. फिर द थर्ड थिंग वाज, जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज जो ली थी शुभ्रा मैम के यहाँ से, तो उसके जो मॉडल आंसर्स मिलते थे मैंने उसमें से भी निकाला. ऐसा नहीं है कि पूरे मॉडल आंसर्स कॉपी कर लिए, जो मुझे 1-2 लाइन मुझे लगता था कि मुझे याद रह जाएंगी वो मैंने अपने नोट्स में लिख लिया. मैंने नोट्स में वही चीजें लिखी जो मुझे पता था कि मैं बार बार पढ़ूंगी, मुझे समझ में आ जाएंगी, मैं याद रख पाऊंगी, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो आपको याद रहना चाहिए एग्जाम वाले दिन. फिर जो आंसर राइटिंग स्टाइल है, तो मैंने आंसर राइटिंग स्टाइल के लिए 2 चीजें यूज की. एक तो उत्कर्ष द्विवेदी सर की स्टाइल, और एक शुभ्रा मैम खुद जो आंसर डिस्कशन में जो स्टाइल बताती है, उनका जो पैटर्न है कैसे आंसर्स लिखना है, स्पेशली पेपर 1 में और पेपर 2A में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है. मतलब मैं बोलूंगी कि आंसर राइटिंग स्टाइल तो मेरे लिए इट वर्कड, हर आंसर राइटिंग वर्कड फॉर मी टू इम्प्रूव माई मार्क्स. फिर अलग से अब मैंने नोट्स में क्या किया कि एक टॉपर के नोट्स थे, प्रीवियस टॉपर्स जो मेरे टाइम पे थे, तुषार गुप्ता सर के नोट्स फ्रीली अवेलेबल थे इंटरनेट पे. उन्होंने एवरनोट करके एक फ्री एप्लीकेशन है, उस पे नोट्स बनाए थे, तो मैंने उनके नोट्स लिए. वो भी उन्होंने भी नोट्स मैम के नोट्स से ही बनाए थे. उनके नोट्स लिए, जब मैं एक बार पूरे अपने नोट्स पढ़ चुकी थी, क्लासेस खत्म हो चुकी थी, क्लास नोट्स पढ़ चुकी थी, जब मैं रिविजन कर रही थी अपने नोट्स का, तब मैंने तुषार गुप्ता सर के नोट्स उठाए. लाइक मैं प्लेटो का रिविजन कर रही हूँ, तो मैंने प्लेटो के सर के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो देखे, मैं पढ़ रही थी, उनके शॉर्ट नोट्स पढ़े, जहां पे उनके शॉर्ट नोट्स में मुझे चीजें समझ में नहीं आई कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही जो उन्होंने लिखी है, मैंने अपने क्लास नोट रेफर किए, वहां से मैंने ऐड की चीजें कि जिस तरह से मुझे वो समझ में आ पाए. तो दिस इज स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ये आप सारे GS में भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप किसी भी टॉपर के नोट्स यूज कर रहे हैं तो उसका जो बेस मटेरियल है, मुझे पता था कि तुषार सर का बेस मटेरियल वॉज शुभा मैम्स नोट्स, तो मैम के नोट्स लिए, सर के नोट्स पढ़ रही थी, देखा यहाँ पे नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, चीजें ऐड कर दी. उस तरह से वो नोट्स मेरे अकॉर्डिंग मुझे जैसा याद रहे वैसे मॉडिफाई हो गए. टाइम रिड्यूस हो गया क्योंकि बेस शॉर्ट नोट्स अवेलेबल थे. ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प आएंगे रिविजन में, कीवर्ड्स को याद रखने में. मैं आगे आगे चीजें बताऊंगी, उससे आपको और क्लियर होगी चीजें. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या किया कि जितने भी स्कॉलर्स हैं, अपन जितने भी स्कॉलर्स पढ़ते हैं, लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, कार्ल पॉपर, इनके जो लाइक रॉल्स पढ़ते हैं, तो उनके जो क्रिटिक्स है, माइकल सैंडर्स एंड द अदर कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स, इन सब की लिस्ट बनाई जितने भी स्कॉलर्स आए. फिर एक कॉलम बनाया, इनके बुक्स के नाम लिखे. फिर एक कॉलम में लिखा कि इनके क्या की आइडियाज है. लाइक अगर प्लेटो की बात करें तो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, या प्लेटो की बात करें तो उनका एक फेमस डायलॉग था कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, या फिर रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज. तो ये सब मैंने की पॉइंट्स 6-7 लाइन में नोट कर लिए. ये एकदम लास्ट में मेरे शॉर्ट नोट्स थे, ये मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हैं. यू कैन यूज दोज एंड ऐड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. देन मैंने जिस तरह बताया शॉर्ट नोट्स मैंने तुषार गुप्ता सर के ऐड किए. फिर जब मैं 2022 का मेंस दे रही थी तो उत्कर्ष सर के नोट्स भी आ गए थे. तो उत्कर्ष सर के नोट्स काफी, आप
एट दिस टाइम इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, आप सीधे उत्कर्ष सर के नोट्स यूज कर सकते हैं और उनको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उत्कर्ष सर के नोट्स करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा अपडेटेड है. तो यू विल हैव अ बेटर आइडिया, बेटर लिंकेजेस विद करंट अफेयर्स, द मॉडल आंसर्स ऑफ शुभ्रा मैम्स टेस्ट सीरीज एंड हिज ओन टेस्ट कॉपीज विल बी देयर. सो उनके ब्लॉग पे उनके नोट्स मिल जाएंगे, और मेरे खुद के जो नोट्स हैं वो मैंने अपने चैनल पे 1A वाला जो पार्ट है उसके पोस्ट किए हुए हैं, रेस्ट आई विल पोस्ट इन ड्यू टाइम. फिर अब क्या किया है कि अब जब रिवीजन करना है, पहले हमने क्लास नोट्स पढ़ लिए. क्लास जब मैं करती थी तो मैं क्लास के पहले पिछली क्लास में जो किया वो रिवाइज करती थी, क्लास के जस्ट बाद जो आज की क्लास में पढ़ाया वो रिवाइज करती थी, फिर पूरा वीकली रिवाइज करती थी. ऐसे जब क्लास चल रही थी तभी मेरा 3 बार रिविजन हो गया था PSIR का. फिर जब क्लासेस खत्म हो गई, जब एक बार का सिलेबस खत्म हो गया, तब रिवीजन की बात आती है. तो मैंने क्या किया कि सिंस मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी तो उसमें सेक्शनल टेस्ट थे, तो हर सेक्शनल टेस्ट के पहले मैं एक बार मैम के पूरे क्लास नोट्स पढ़ती थी. उसमें मेरे को उस टॉपिक के 1 या 2 दिन लग जाते थे, लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, मेकियावेली पढ़ना है तो 3 दिन इसमें लग जाते थे मेरे, क्योंकि हाफ डे देती थी ऑप्शनल को. देन उसके बाद जिस दिन मेरे को टेस्ट लिखना है, अगर शाम में लिखना है तो मैं सुबह जो मेरे शॉर्ट नोट्स है, जैसा मैंने बताया कि मैंने सर के नोट्स अपने हिसाब से एडिट किए थे इस टाइम पे जब मैं रिवीजन कर रही थी क्लास खत्म होने के बाद. तो जब मैंने वो शॉर्ट नोट्स मैंने जस्ट टेस्ट वाले दिन सुबह फिर से पढ़े, तो क्या हुआ, एक बार नोट्स पढ़ लिए, एक बार वो रिवीजन कर लिया उसी दिन, तो 2 बार हर टेस्ट के पहले हो गया, 3 बार क्लास के साथ हो गया था. तो इस टाइम तक आपको चीजें याद रहने लग जाएंगी, क्योंकि आप जब PSIR का आंसर लिखते हैं तो आपको कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे अगर रॉल्स की थ्योरी लिख रहे हैं, रॉल्स की जस्टिस की थ्योरी लिख रहे हैं, तब ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, मिनिमैक्स प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल, इन कीवर्ड्स को आप मिस नहीं कर सकते अपने आंसर्स में. अगर हमने सब कुछ लिख दिया पर ये कीवर्ड्स मिस कर दिए तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद आपको मार्क्स कम मिलेंगे. सो मैंने ये टॉपर कॉपीज से आइडेंटिफाई किया कि वो लोग कीवर्ड्स हमेशा लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो मैंने वो चीज की. तो इसलिए शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस वहां आती है कि आप जल्दी से उस दिन जिस दिन टेस्ट देना, अब मैंने 3 दिन लगा दिए वैसे तो प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली में, पर जब शॉर्ट नोट्स पढ़ना है तो 3 घंटे में हो जाएगा वो काम. और यही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे जब आपको मेंस कि जो GS के पेपर्स होते हैं और जो ऑप्शनल के पेपर होते हैं उसमें बीच में 4 दिन का गैप आता है, तो ये शॉर्ट नोट्स को आप जल्दी से एक बार रिवाइज कर पाएंगे उस पूरे 4 दिनों में. उसके बाद आती है अपन जैसे रिवीजन की बात कर ली, शॉर्ट नोट्स कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है. मैंने आपको बता दिया कि अब शॉर्ट नोट्स में क्या है कि जो सीनियर्स के या जो टॉपर्स के नोट्स हैं उन्होंने वो थिंकर के सामने उसका इमेज भी लिया हुआ है, तो थोड़ी फोटोग्राफिक मेमोरी भी काम आती है. ये आपको दूसरे GS पेपर्स में भी काम आएगा. मैंने ऑप्शनल में काफी यूज किया कि प्लेटो की थ्योरी लिख रही हूँ तो फोटो अटैच कर दिया उनका ताकि याद रहेगा कि उन्होंने किया है. और बुक्स और स्कॉलर्स उनकी लिस्ट, ये सब आपको जो मैं नोट्स बता रही हूँ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उत्कर्ष सर के नोट्स उनके ब्लॉग पे. अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती है, हमने रिवाइज कर लिया, हमने सब कुछ याद कर लिया, आंसर राइटिंग कैसे करनी है. तो मैंने तो शुरू ही आंसर राइटिंग सेक्शनल टेस्ट लिख के करी थी. इट्स अप टू यू कि आपको PYQ से शुरू करनी है तो आप PYQ से शुरू कर दीजिए. मैंने सेक्शनल टेस्ट से शुरू किया था. तो अब मैंने जब 2022 में मैंने क्या डिफरेंट किया कि मैंने सारी आंसर कॉपीज देखी उत्कर्ष सर की, हर एक आंसर कॉपी, हर एक आंसर को काफी ध्यान से देखा. वो अपने कुछ आंसर्स में ना कुछ आंसर्स अपने कोट से शुरू करते हैं, लाइक कोट लिख देंगे, कोई स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, सपोज वो लिख दिया उन्होंने, देन प्लेटो का नाम लिख देंगे, प्लेटो की बुक, एंड देन उस कोट को लिंक करके कोई इंट्रो स्टार्ट कर देंगे. तो ये चीजें उन्होंने पहले से अपने नोट्स में लिखी हुई थी कि मैं इस चीज का इंट्रो ऐसे करूंगा. जैसे मैंने भी फिक्स कर दिए थे इंट्रो के, प्लेटो आएगा तो मैं ये इंट्रो लिखूंगी शुरू के 2 लाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हमारा इंट्रो कंक्लूजन सोचने में ही जाता है. तो जितना बेटर होगा हम जितना पहले से सेट कर पाएंगे वो इंट्रो कंक्लूजन. तो मैंने पहले से सोच लिया था कि प्लेटो आएगा तो मैं उनका लिख दूंगी प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, एंड देन जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे लिंक 1-2 लाइन लिख दूंगी कि प्लेटो अपनी थ्योरी जो निकाल रहा था वो तब निकाल रहा था जब एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई हुई और एथेंस हार गया, देन प्लेटो वांटेड टू मेक इट एन आइडियल स्टेट. आप देख पाओगे मेरे शॉर्ट नोट्स में भी, मेरी कॉपीज में भी मैं कैसे कुछ सेट इंट्रोज है मेरे, मैं वही यूज कर रही हूँ. उससे काफी टाइम रिड्यूस हो जाता है आपका थिंकिंग, और उसी वजह से मैंने अपने दोनों अटेम्प्ट में अपने सारे पेपर कंप्लीट किए ऑन टाइम. लाइक इवन लास्ट के क्वेश्चंस के लिए भी आई हैड इनफ टाइम टू राइट ऑल द आंसर्स प्रॉपर्ली. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 40 मार्क का छोड़ देंगे तो कैसे 280 290 क्रॉस कर पाएंगे. फिर मैंने जब सारी कॉपीज देखी तो अब मैंने देखा कि एक 5C अप्रोच है, ये आप सारे अक्रॉस 1A 1B 2A 2B में अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली इन द 20 मार्कर्स 15 मार्कर्स. 10 मार्कर्स में थोड़ा कम करना होता है. तो दिस 5C अप्रोच इज, फर्स्ट इज यू गिव अ कॉन्टेक्स्ट,
कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस थिंकर ने वो पर्टिकुलर थ्योरी दी है। लाइक मैकियावेली ने दी है, तो मैकियावेली एक नेशनलिस्ट, एक ग्रेटेस्ट पेट्रियट थे, वो इटली को ग्रेट अगेन बनाना चाहते थे। या कौटिल्य है तो वो अर्थशास्त्र उन्होंने क्यों दिया है, तो एक कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे हम। फिर सेकेंड सी इज कंटेंट देंगे, कंटेंट या फिर कंपेयर करेंगे उनको दूसरे थिंकर्स से कि प्लेटो ने आइडियल स्टेट की बात ये करी है, प्लेटो की आइडियल स्टेट वाज फिलोसोफर किंग गवर्निंग द स्टेट। वहीं एरिस्टोटल की जो आइडियल स्टेट है वो है पॉलिटी, थोड़ा रूल ऑफ मेनी। सो इस तरह से आप कंपेयर करेंगे। देन आएगा आपका कंटेंट, जो मेन क्वेश्चन पूछा है उसको कंटेंट में डाले। अब कंटेंट और कंपेयर ऊपर नीचे आप क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करना है। देन आता है कि क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज चाहे क्वेश्चन में पूछा हो या नहीं पूछा हो, आपको एक पैरा या अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो भी छोटा सा एक पैरा आपको देना है कि इस थिंकर की ये थ्योरी, इसका एक क्रिटिसिज्म दूसरे थिंकर्स ने ये दिया है। अगर आपको थिंकर का नाम नहीं याद आ रहा जिसने क्रिटिसाइज किया, आप उसका स्कूल ऑफ थॉट लिख दो सिर्फ, या फिर मैनी क्रिटिसाइज दिस थिंकर एज। वैसे तो याद होना चाहिए, पर अगर नहीं आता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिर अब 4 C's हो गए, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट, कंपेयर, क्रिटिसाइज। देन फिफ्थ द कंक्लूजन में आप कंटेम्प्रेरी से ऐड करिए। अगर प्लेटो है तो आप देखिए कि बाद के थिंकर्स में कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है, कि प्लेटो का जो सबसे बड़ा क्रिटिक था कार्ल पॉपर, उन्होंने बोला है कि यू कैन आइदर हेट प्लेटो, लव प्लेटो, यू कांट जस्ट इग्नोर प्लेटो, या प्लेटो वाज अ मैजिशियन। या फिर अपन बोल सकते हैं कि दूसरे जो भी है दी होल पॉलिटिकल फिलोसफीज दस दी फुटनोट्स टू प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ऐसी चीजें उनके सिग्निफिकेंस में लिख सकते हैं। या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आज जो चीजें हो रही है हमारी सोसाइटी इंटरनेशनल रिलेशन में, उससे लिंक करके आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो दिस वाज द 5C अप्रोच दैट आई यूज्ड इन माय आंसर्स। अब अदर देन दैट ये आपका एक जनरल चीज हो गई। अब अगर अपन बात करें कि फर्स्ट 1A है उसका इंट्रो अपने को लिखना है, तो इंट्रो जैसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि डिस्कस प्लेटोस फिलोसोफर किंग, सो आप पहले यहाँ पे इंट्रो दोगे ऑफ द प्लेटो इटसेल्फ कि प्लेटो वाज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। फिर आप थोड़ा सा इंट्रो दोगे प्लेटो फिलोसोफर किंग की थ्योरी लाया क्यों, जैसा मैंने बताया कि लड़ाई हो गई थी एथेंस स्पार्टा, एथेंस लूज कर गया था, तो प्लेटो वांटेड टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट, ऐसे करके थोड़ा सा इसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जब आप प्लेटो को कर रहे हैं तो उन्होंने ये थ्योरी फिलोसोफर किंग की उनकी किस बुक में दी है, यू हैव टू कोट दैट वर्क ऑफ दैट स्कॉलर। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो लिस्ट बनाई थी बुक्स और स्कॉलर्स की। ये मैंने पहले अटेम्प्ट में नहीं किया, पर जब मैंने देखा टॉपर कॉपीज में तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ये इंप्रूव किया। फिर अब की कॉन्टेक्स्ट दिया आपने कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस थिंकर ने वो चीज की है। फिर आपने कंटेंट दिया, फिर रिलेवेंस दिया। तो अभी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस वाली जो मैं आपको बात कर रही थी, ये आप टॉपर कॉपीज से भी देख सकते हैं, प्रीवियस टॉपर कॉपीज जो यूपीएससी के प्लस जो टेस्ट सीरीज के टॉपर कॉपीज है, यहाँ से आपको ये चीजें मिलेगी, मॉडल आंसर से मिलेगा, न्यूज पढ़ रहे हैं उससे मिलेगा, वहां से सब चीजें मिलेंगी। फिर कंक्लूड करिए कि कैसे वो इंस्पिरेशन था बाद के स्कॉलर से, कैसे आज भी उसकी फिलॉसफी रिलेवेंट है। फिर अब आती है पेपर 1A का बात हुआ, 1A की आंसर राइटिंग की बात हुई। अब 1B ऐसा पार्ट है, यहाँ आपको जो 1A हुआ, आपको एक तो ना 1A को 1B में, 1A को 2A 2B सब पेपर्स को और अपने आपस में आप ये अलग अलग सेक्शन में मत बांटिए, इनको आपस में पूरे नॉलेज को यूज करिए, जहां का जो भी नॉलेज है आपको उस क्वेश्चन से रिलेवेंट लग रहा है आप यूज करिए। तो 1B में जो एक गलती मैं कर रही थी पहले अटेम्प्ट में, मैं कुछ भी 1A की थ्योरी या 2A की थ्योरी कुछ भी नहीं इंक्लूड कर रही थी, तो मेरा आंसर एकेडमिक नहीं हो रहा था, वो GS2 जैसा ज्यादा हो रहा था। तो एकेडमिक आंसर को बनाने के लिए मैंने बहुत थ्योरी यूज की। लाइक मुझे पता था अगर जुडिशरी का क्वेश्चन है तो लॉर्ड ब्राइस है, उनकी एक कोट है जो मैंने अपने आंसर्स में लिखी है, आपको मेरी आंसर कॉपीज में दिखेगी, मैं उससे शुरू करूंगी, आपको मेरे नोट्स में भी ये चीजें दिखेंगी, तो आप ये कर सकते हैं। अगर जैसे लोकल गवर्नमेंट का क्वेश्चन है तो मैं लोकल गवर्नमेंट से स्टार्ट नहीं कर दूंगी कि इंडिया में 73rd 74th से हुआ, ये चीज हम GS में करते हैं। यहाँ पे करेंगे तो हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन से करेंगे। इवन हम गांधी को यहाँ पे ला सकते हैं कि कैसे उन्होंने ग्राम स्वराज की बातें करी थी। तो दिस इज हाउ यू ऐड द थिंकर्स इन योर 1B पेपर्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे देखिए टॉपर की कॉपीज, मेरी कॉपीज देख सकते हैं आप, प्रीवियस टॉपर है लाइक उत्कर्ष द्विवेदी सर, आपको पता चलेगा कैसे लिंक करना है। इवन शुभा मैम के जो मॉडल आंसर्स हैं, जब मैम डिस्कस करती हैं तो मेरे नोट्स में आपको मिलेगा जो मैम ने डिस्कस किया है, तो वो कैसे ऐड करवा रही थी हर क्वेश्चन में थ्योरी। लाइक एथनिसिटी या कास्ट का कोई क्वेश्चन आता था तो हम ये ऐड करते थे कि इंडिया प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, इसलिए हम करते हैं। हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी 2A में, पर आपको 1B में भी ऐड करनी है। तो ये चीजें आपको ऐसे आप ऐड करेंगे 1B में, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो अब शुरू किया, पहले कोर कॉन्सेप्ट से आपको शुरू करना है आंसर,
लाइक मैंने जैसे बताया कि जुडिशरी का क्वेश्चन है तो मैं लॉर्ड ब्राइस को या ऐसे करूंगी। गवर्नर का क्वेश्चन है अगर पेपर 1B में तो मैं फेडरलिज्म से शुरुआत करूंगी, क्योंकि गवर्नर इज द लिंचपिन ऑफ फेडरलिज्म। और अगर जैसे इसी तरह अगर हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने एक लाइन याद कर ली थी, लास्की की लाइन थी राइट्स के अकॉर्डिंग, तो जब भी फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आता था तो मैं लास्की की उस लाइन से शुरू करती थी, फिर लास्की का नाम लिखती थी एंड देन फिर थोड़ी बात कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, थोड़ा राइट्स की कंसेप्ट की बात करिए, लॉक ने राइट्स की बात करिए, कांत ने राइट्स की बात करिए, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करती थी, थोड़ा अकेडमिक बना के फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया पे लाती थी। जैसे मैं आपको बता रही थी कास्ट और एथनिसिटी, तो मैं ऐसे शुरू करती थी कि पॉलिटिकल सिस्टम डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम, इवन इंडियन सोसाइटी इज अ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, सो द रोल ऑफ आइडेंटिटी इज अ वेरी डोमिनेंट रोल हियर, ऐसे करके इंट्रो स्टार्ट करती थी। तो ये जीएस से आपका इंट्रो को डिफरेंट करता है, आप बताता है एग्जामिनर को कि आपको आप पॉल साइंस के स्टूडेंट हो। सो और ये भी बात है कि 1B के जब क्वेश्चन आप करते हैं तो आप कोई भी चीज लिखते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो हम आर्टिकल्स को कोट करिए, इवन सोशल जस्टिस की बात आती है आप डीपीएसपी के आर्टिकल्स को कोट करिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये दैट यू कोट द राइट आर्टिकल। आप यहाँ पे गलत आर्टिकल नहीं कोट कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते आर्टिकल 19 राइट टू लाइफ है, नहीं, यू हैव टू राइट आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम है। सो ये ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट भी मैंने बना दी थी अपने लिए, किसी टॉपर की यूज करके अपने लिए अपने हिसाब से मॉडिफाई करी, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी नोट्स। सो अब यहाँ पे इस वाले में अपन देखेंगे हमारे क्लास नोट्स में ना 1B में बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं, तो ठीक है, अगर आपको याद, अच्छी बात है, अगर आप याद कर पाते हैं कुछ स्कॉलर्स इज वेरी गुड, और आप नहीं याद कर पाते तो भी कोई बात नहीं, उस स्कॉलर ने जो बात करी एटलीस्ट वो याद रखिए, वो एनालिसिस को याद रखिए, वो एक अकेडमिक एनालिसिस है उसको आप नोट करिए। फिर 1B में ये भी करना है कि कमीशन है, कि गवर्नर का क्वेश्चन है तो वी हैव टू कोट सरकारिया कमीशन और पुंची कमीशन या राजमन्नार कमीशन, वी हैव टू कोट सच कमीशंस और कमिटीज व्हेन इट कम्स टू 1B पार्ट। और 1B में हाँ 1B में एक इंपॉर्टेंट पार्ट और है कि सिंस 1B थोड़ा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल आर अ मस्ट, लाइक अगर गवर्नर पे या फिर फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आता है तो फेडरल टेंशन्स में मैं एग्जांपल दूंगी, नीट यूजो में तमिलनाडु और सेंटर के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना में या नेशनल पेंशन स्कीम में कैसे फेडरलिज्म टेंशन हो रही है, या जीएसटी में कैसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी में हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कर रहे हैं। गवर्नर की बात आती तो कैसे अभी तमिलनाडु गवर्नर और वहाँ के असेंबली का जो रो हुआ था तो ये फेडरलिज्म की टेंशन है, प्लस गवर्नर का भी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें ये कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है, आपको नोट करने होंगे जब आप करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, तो आप वहाँ से साइड में अपने लिए बस एग्जाम्पल्स नोट करिए कि बस ये हुआ था, पूरे न्यूज़ आर्टिकल को नोट करने की जरूरत नहीं है। सो और कैसे यूज़ करना है करंट अफेयर्स ये भी मैंने प्रीवियसली बनाए हुए वीडियो, इधर उधर आप देख सकते हैं, चैनल पे हैं। फिर अब जो कंसेप्ट जो भी दिया लाइक गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है, तो अब मैंने जो बोला 5C अप्रोच, तो उसमें क्रिटिसिज्म आता है। अब यहाँ पे देखिए क्रिटिसिज्म में ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं, ये चीज़ें बोली है सरकारिया कमीशन ने, फिर आप कंक्लूड कर दीजिए कि कैसे वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, कैसे कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स या दूसरी कंट्रीज़ में क्या सिस्टम है उससे हम बेटर कर सकते हैं इंडिया को, ऐसे करके, या कोई थ्योरी से फिर लिंक कर दीजिए आप कंक्लूजन में। इस तरह से 1B के आंसर्स लिख सकते हैं। अब बात आती है 2A। सो हियर मतलब 1A 1B हो गया। 2A में भी ऐसा नहीं है कि 1A 1B की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं जहां हमको लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें यूज़ हो सकती है। तो जैसे एक मोस्ट ऑफ दी जैसे 2A और 1A दोनों थ्योरेटिकल पार्ट है, तो 2A में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने 1A का ही मॉडल फॉलो किया है। लाइक अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पूछिए, उसकी रेलेवेंस पूछिए, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा या तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में लिखूंगी अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं सीधे पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है उससे स्टार्ट कर दूंगी। फिर मैं लिखूंगी कॉन्टेक्स्ट की, कौन जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी में कुछ स्कॉलर्स हैं, स्मिथ है, माल्थर्स है, रिकार्डो है, इन सब की इन्होंने क्या क्या बोला है पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, ये सब बताऊंगी। फिर इस अप्रोच की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है, इसकी प्रेजेंट रेलेवेंस क्या है कि आज भी वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, ये लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी को यूज करते हुए पॉलिसीज बनाते हैं। आपको नोट्स में ये चीजें मिलेंगी, नहीं तो आंसर्स में मिल जाएंगी, तो वहां से मैंने नोट किया। फिर अब क्रिटिसिज्म भी लाया कि कैसे दूसरी अप्रोचेस ज्यादा बेटर हैं, क्या इसमें क्या दिक्कत है कि कुछ ज्यादा ही पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो डिटर्मिनिस्टिक है, कुछ ज्यादा ये करो वो करो बताते हैं, थोड़ा सब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। फिर दूसरी कैसे दूसरी अप्रोचेस भी थोड़ी सी कंपेयर करूंगी यहाँ पे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी या इन सब से थोड़ा सा कंपेयर कर दिया। और कैसे फिर कंक्लूड करूंगी कैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
20 मार्क का क्वेश्चन है तो देख बताऊंगी कि बिहेवियरलिज्म, नियो बिहेवियर मतलब पोस्ट बिहेवियरलिज्म आज कैसे आ गया है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ही एक अप्रोच है। तो ऐसे करके 20 मार्क्स में मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी चीजें, 10 मार्क्स में थोड़ा ब्रीफ टू द पॉइंट करूंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हर सेक्शन में आपको आंसर्स में करनी है, ये चीज की जो क्वेश्चन की लाइन है, आप क्वेश्चन का अगर कोई पार्ट एड्रेस कर रहे हैं अपने आंसर में तो क्वेश्चन की जो लाइन है ना एज इट इज वहां लिख देंगे, या थोड़ा सा उसको पैराफ्रेज करके लिख देंगे, पर क्वेश्चन के कीवर्ड्स यूज करके उसको अंडरलाइन करिए, ताकि क्वेश्चन एग्जामिनर को समझ में आएगा यस यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, यस तुम डिविएट नहीं हुए, चाहे तुम 20 मार्क का लिख रहे हो, तुम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर तुम मेन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन से डिविएट नहीं हुए हो। ये चीज भी मैंने टॉपर कॉपीज में देखी थी और आप मेरी कॉपीज में देखेंगे, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को यूज करने की कोशिश करती हूँ जहां पे मैं एड्रेस करना शुरू कर रही हूँ डायरेक्टली उस क्वेश्चन को, और फिर अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि एग्जामिनर को सिग्नल हो जाए कि नहीं आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट डिविएटेड। सो ये सब चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं टॉपर कॉपीज से, फिर अपने आंसर्स में इंकलकेट करते हैं। ये चीज मैंने जीएस में भी करी है। ये 2A की बात हो गई, हमने 2A कर लिया डिस्कस। अब लास्ट 2B के आंसर्स कैसे लिखें। अब 2B में भी मैंने देख लिया था कि कुछ कंट्रीज हैं, कुछ रीजन्स हैं जिन पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते ही आते हैं, लाइक इंडिया इजराइल, इंडिया जापान, इंडिया अफगानिस्तान, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, या इंडिया का पर्सपेक्टिव और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और ये सब क्वेश्चन हम देखेंगे तो 2022 में रिपीट हुए भी हैं। तो ऐसा आप ना जब PYQ एनालिसिस कर रहे हैं, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या नोट कर रहे हैं, उसके पहले भाई PYQ एनालिसिस करेंगे ना रिवीजन के टाइम पे भी अपने, तो आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक को कितना वेटेज देना है। लाइक मुझे पता था, एग्जांपल MN रॉय का टॉपिक है, मुझे दिख रहा था अभी आजकल यूपीएससी ज्यादा नहीं पूछ रही, औरबिंदो ज्यादा पूछ रही है, तो मैं औरबिंदो पे 20 मार्क जितना कंटेंट प्रिपेयर करके गई थी और MN रॉय पे से 10 मार्क जितना प्रिपेयर करके गई थी। लास्ट में अगर मेरे पास प्रायोरिटी है कि मेरे पास आधा ही टाइम में रिवाइज करने हैं, तो मैं अरबिंदो को रिवाइज करूंगी एकदम, जो 5 दिन का गैप होता है प्री और GS और ऑप्शनल के पेपर के बीच में, तो और MN रॉय को नहीं करूंगी रिवाइज। तो इस तरह से आपको देखना होगा प्रीवियस 10 ईयर्स में, लाइक मैंने 2023 से लेकर के अभी तक के क्वेश्चन पेपर से देखा कि अच्छा इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस के सारे टॉपिक लिख लिए, फिर मैप कर लिया कि इससे इस ईयर में 10 मार्क का क्वेश्चन आया था, एक 15 का आया था, एक 20 का आया था। तो मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक्स पता चल गई यूपीएससी के दिमाग में। सो सिलेबस एंड द PYQs आर योर की टू द एग्जामिनर्स माइंड। सो आप उसको बहुत जुडिशियली यूज करिए। टॉपिक थोड़ा मेहनत वाला काम है, टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना, हर टॉपिक पे करना। तो आप ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होए, उसके बाद आप करिए रिविजन के टाइम पे, एंड इट विल गिव यू ग्रेट डिविडेंड्स इन टर्म्स ऑफ फर्दर रिविजन्स व्हेन यू हैव लेस टाइम एंड यू हैव टू रिवाइज मोर थिंग्स इफेक्टिवली। सो जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था IR में कि इंडिया जापान और इंडिया इजराइल ये सब पूछ रहे थे, वैसे तो मैंने, और नेबरहुड पे भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, तो वैसे तो मैंने इंट्रो सब कंट्रीज के लिए, चाहे वो पूछते हैं नहीं पूछते, हर कंट्री के लिए कुछ सेट इंट्रोज बना लिए थे कि अगर इंडिया US की बात आएगी तो मैं स्टार्ट करूंगी कि इंडिया US को तो नेचुरल अलाई बोला था हमारे फॉर्मर PM ने, या फिर इट्स द मोस्ट डिफाइनिंग और सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी, यह भी किसी ने बोला था। ऐसे करके चाहे मैं कोट नहीं करूँ उस इंसान को, बट मैं वो लाइन लिखूंगी मैं सबसे पहले इंडिया US में, ऐसे ही इंट्रोड्यूस करूंगी मैं इंडिया US को। फिर अगर मुझे कहीं कुछ नहीं सूझ रहा तो मैं कौटिल्य की थ्योरी या महान या मैकाइंडर की थ्योरी से इंट्रोड्यूस कर दूंगी आंसर को, कि अगर सेंट्रल एशिया की बात आती है तो मैं कर दूंगी कि जो सेंट्रल एशिया को कैप्चर करता है, ये थ्योरी दी थी महान या मैकाइंडर में से किसी ने कि वही वर्ल्ड को रूल करेगा, या जो सी को रूल करेगा वही वर्ल्ड को रूल करेगा। या कौटिल्य से इंट्रोड्यूस करना है पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी, तो हमारा फर्स्ट नेबर है, नेचुरली नेबर्स आर नेचुरल राइवल्स। या फिर मिडिल ईस्ट के साथ अगर मेरे को आंसर लिखना है तो सेकंड कोसेंट्रिक सर्कल में आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, तो वो नेचुरल फ्रेंड्स हैं हमारे। ऐसे करके चीजें इंट्रोड्यूस करने के कुछ सेट मैंने इंट्रो कंक्लूजन कर लिए थे, आप मेरे आंसर्स में और मेरे नोट्स में देख सकते हैं चीजें। फिर अब जैसे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है कोई दे दो कि इंडिया के अलायंस, जैसे इंट्रोड्यूस किया, मैंने कैसे इंट्रोड्यूस करना है मैंने आपको बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट या कोई भी चीज ऐसी कर दो। देन नहीं याद आता है तो कौटिल्य या इनकी जनरल थ्योरीज यूज कर लो। फिर अब स्टार्ट करते हैं, अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है, कोई 2 कंट्री की बात आई है, तो आप हिस्टोरिकल रिलेवेंस दो। हिस्टोरिकल रिलेवेंस कैसे दोगे? प्री इंडिपेंडेंस हमारे क्या रिलेशंस थे, क्योंकि ब्रिटिश टाइम था तो हम इतने कॉलोनी थे तो हमारा इतना कुछ रोल नहीं था वर्ल्ड अफेयर्स में। फिर
कोल्ड वॉर में 1947 से 1991 तक हमारे कैसे रिलेशंस रहे उस कंट्री से, देन पोस्ट 1991 कैसे रहे। अब इसके बाद आपको फिर से ब्रेक करना है कोई एक और दूसरे पीरियड में, आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट और आफ्टर 2014 यू कैन डू दैट ऑल्सो। थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिलेवेंस का एक पैरा दे दो अगर आप, ये वही कॉन्टेक्स्ट सेट करने की बात हुई जो हम 5C अप्रोच में देखिए, कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं कि कैसा हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। उसके बाद अब जब हम थिंकर्स यहाँ पे कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो एम्बेसडर ने कुछ बोला हम एम्बेसडर्स को कोट करने लग जाए, नहीं। जैसे मीर शाइमर है, ऐसे जो थिंकर्स है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इवन हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है आप उनको भी कोट कर सकते हैं। ऐसी चीजें आप ये सब कोट करिए। एंड वही बात है कि आप आईआर का है तो आईआर की जो थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं आईआर की, उनको आप लाइए अपने क्वेश्चन में। चाहे आप 2B का क्वेश्चन ले रहे हैं पर 2A की थ्योरीज, जो भी थ्योरीज हैं, रियलिज्म है, आइडियलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, ये सब थ्योरीज आप लाइए, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, ये सब लाइए आप। जब आपके आंसर्स आप लिख रहे हैं तब आपका आंसर जीएस से डिफरेंट होगा, थोड़ा अकेडमिक आंसर बनेगा। लाइक मुझे पता था कि अगर क्वेश्चन आता है नेबरहुड में तो मैं फंक्शनलिज्म की थ्योरी दूंगी कि हमें कुछ फंक्शंस पे पीस बाय पीसेस करना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स है जो मैं आंसर के यूज कर रही हूँ, आप जब पीएसआर पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगी ये बातें कि जैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यूज करूंगी कि पर्सपेक्टिव की बात है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, हम पर्सपेक्टिव ठीक कर लें तो शायद लड़ाई खत्म हो जाए। तो ऐसे थ्योरी लाऊंगी मैं अपने क्वेश्चन में जहां भी मुझे ऐसे बात करनी होगी। और फिर अब जैसे मैंने हिस्टोरिकली आपको बताया, फिर एक जोग्राफिकली भी कि उनके हमारे सराउंडिंग में हमारा जैसे अगर सेंट्रल एशिया से रिलेशन है तो जोग्राफी से हम थोड़े दूर हो रहे हैं, प्लस पाकिस्तान का प्रेजेंस होने से हमको रोड का एक्सेस नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, बट ऐसे लिखना नहीं है जोग्राफिकली, वो हम जीएस में करते हैं, हमें यहाँ नहीं करना है। फिर अब जैसे अब इंडिया और सपोज जापान का क्वेश्चन आया, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आया तो हमें बायलैटरल रिलेशन पे क्वेश्चन आया तो हमें मल्टीपल पॉइंट्स करने हैं। तो इनका पॉलिटिकल एरिना में जैसे क्या हम ग्लोबल रिफॉर्म्स पे एग्री करते हैं जापान से, तो वहाँ एरिया ऑफ कोऑपरेशन आ गया। अगर एग्री नहीं करते हैं तो ये एरिया ऑफ फ्रिक्शन में, एरिया में हम आंसर में लिख देंगे। उसी तरह दोनों का क्लाइमेट चेंज पे क्या स्टैंड है हम वो लिख सकते हैं। दोनों का न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में क्या स्टैंड है, टेररिज्म में क्या है, अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, कोविड आया है, चाइना का जो इमरजेंस हुआ है उसमें हमारे क्या स्टैंड है। ऐसे करके आप बायलैटरल रिलेशंस को ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स कर सकते हो। और ऐसे पूरा 20 मार्क का क्वेश्चन में आप थ्योरी भी ला सकते हैं, आप सारे एस्पेक्ट्स भी कवर कर लेंगे, इस तरह से होलिस्टिक आंसर हो जाएगा वो। फिर अब एक बात ये भी है कि आप जब पेपर 2B करते हैं, कोई जैसे पूछा, अगर आपसे पूछा है 2A में भी, इनफैक्ट शायद क्वेश्चन था 2A या 2B में कि स्टेट का जो अप्रोच है रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म उसको आप कंपेयर करो। 2022 का क्वेश्चन है ये। तो मैंने क्या किया कि रियलिज्म और मार्क्सिज्म है, इनकी दोनों की कुछ, मेरे को पता था कि इनकी कुछ क्रिटिसिज्म है, दोनों का क्रिटिसिज्म है कि दोनों ही जैसे फेमिनिस्ट हैं। मैं अब यहाँ पे आंसर जनरेट करने के लिए क्या करूँगी, मैं अपने पेपर में शुरू में ही लिख दूंगी सम स्कूल्स लाइक फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट, क्रिटिकल स्कूल, रिबलर स्कूल, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब उनको डिफरेंट तरीके से यूज करूंगी। लाइक मुझे पता है कि दोनों ही हम बोल देंगे मार्क्सिस्ट और जो रियलिस्ट अप्रोच है दोनों ही स्टेट को बोलते हैं कि स्टेट इज द प्राइमरी एक्टर, या फिर मार्क्सिस्ट बोलता है स्टेट तो बुर्जुआ क्लास का इंस्ट्रूमेंट है। दोनों ही को हम बोलेंगे कि दोनों ही मेल ओरिएंटेड हैं, फेमिनिज्म वाले अगर बोलेंगे तो मेल ओरिएंटेड है। तो हम ऐसे ऐसे करके इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि कहीं भी नोट्स में नहीं है इन दोनों थ्योरी का स्टेट पे कंपैरिजन, इनका इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी पे कंपैरिजन, पर हम ऐसे पॉइंट्स जनरेट करेंगे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से इनको एनालाइज करके। ये अप्रोच मैंने उत्कर्ष सर की कॉपी में देखी थी, मुझे बहुत सही लगी, उनकी आंसर स्ट्रैटेजी में थी ये। तो आप देखेंगे तो मैंने भी ये यूज़ किया हुआ है कि कैसे डिफरेंट स्कूल्स को यूज़ करना है। जैसे अगर वही मैं जैसे बात करी थी फॉर द सेम एग्जांपल रियलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, कि दोनों को ही बोलेंगे कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान देते हैं, कोऑपरेशन पे ध्यान नहीं देते इंटरनेशनल रिलेशन में। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर से इनको देखें तो दोनों ही पर्सपेक्टिव्स की बातें कर सकते हैं, दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोऑपरेशन ज़्यादा दिखेगा। या पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ से कि दोनों ही डिस्कोर्सेज है। तो ऐसे करके आप ये मैं अभी ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ 2B का, बट आप ये हर सेक्शन में यूज कर सकते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से किसी भी चीज को एनालाइज करके एक अच्छा आंसर, एकेडमिक आंसर, मोर पॉइंट्स, ऐसे सब करके आंसर जनरेट हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया वो 1 या 2 पॉइंट लिख पाए, वही मैं 5 से 6 पॉइंट लिख पाई, क्योंकि मैंने डिफरेंट स्कॉलर्स से एनालाइज कर लिया था इस क्वेश्चन को। और अगर आपको याद नहीं आता कि क्रिटिकल स्कूल का कौन स्कॉलर था, आप सिर्फ लिख दीजिए स्कॉलर्स ऑफ क्रिटिकल स्कूल, स्कॉलर्स ऑफ फेमिनिस्ट, यू विल से दिस अबाउट दिस, ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है।
फिर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आईआर के क्वेश्चन ना यूजुअली थोड़ा आईआर का क्वेश्चन लंबा होता है, जैसे अभी पिछली बार तो नहीं आया पर 2-4 लाइन के होते, तो आप मेक श्योर कि यू आंसर ऑल दी सब पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। और जब वो सब पार्ट को आप आंसर कर रहे हैं तो वहाँ आपके आंसर में अपने लाइन में आप लिखिए कि कैसे वहाँ पे करना है, कि कैसे यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें कि एक क्वेश्चन है कि इंडिया का कंसर्न क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान की जो प्रेजेंट यूएन पॉलिसी है वो भी काफ़ी मेसी हो गई है तालिबान को लेकर, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे इंडिया की कंसर्न्स है क्रॉस बॉर्डर को लेके पाकिस्तान से, फिर कैसे यूएस जब पुल आउट हो रहा है अफगानिस्तान उससे एम्बोल्डन हो रहा है पाकिस्तान का टेररिज्म, फिर कैसे यूएस इंडिया रिलेशनशिप हैंडल, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि डेप्थ हैंडलिंग करें अपन इंडिया यूएस रिलेशन की। तो ऐसे करके हर सब पार्ट को आप आंसर करिए। सारे आप देखेंगे कि जितने भी एक टॉपर कॉपीज में मैंने भी और मैंने उत्कर्ष सर के ब्लॉग में भी ये पढ़ा था कि एक चीज़ जो कॉमन थी मुझे दिखा कि वो लोग कोई भी आईआर का क्वेश्चन है, कोई भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जैसे हम एडिटोरियल्स नहीं पढ़ते कि हर चीज़ वो लोग डिमेंशन करते हैं, वैसे उन्होंने लिखे हुए थे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें डाली हुई थी, इवन डेटा भी डाला हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि हम पीएसआई में डेटा कोट नहीं करते, हमेशा ट्रेड का डेटा क्या है, इंडो पैसिफिक में क्वेश्चन आया तो कितना ट्रेड यहाँ से फ्लो होता है, ये सब लिखना इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन द 10 मार्क का क्वेश्चन आप ये यूज़ कर सकते हैं। और एक जो चीज़ें आती है हमेशा कि कोई भी क्वेश्चन आता है डू यू अग्री टू दिस, डू यू अग्री टू दैट, तो आप यहाँ पे ना कोई बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव स्टैंड लेने की जगह आप थोड़ा प्रोज एंड कॉन्स करो, और फिर अपन जो भी कुछ हम बोल रहे हैं उसको बोलो कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड एक मिडिल पाथ लेते हुए, ऑलवेज टेक द मिडिल पाथ। और वही मैंने आपको बताया हुआ है कि डाइवर्स कैसे करना है, इकोनॉमिक एंगल लाओ, स्ट्रैटेजिक एंगल लाओ, ट्रेड लाओ, इन्वेस्टमेंट लाओ, मिलिट्री कॉर्पोरेशन लाओ, ये सब चीज़ें करो। और वही बुक्स वगैरह कोट कर, जैसे मीर शाइमर है तो उनकी बुक कोट करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपका आंसर थोड़ा एकेडमिक लगेगा। सो दिस वॉज दी ऑल पेपर वाइज अप्रोच। अब जो कुछ चीज़ें कॉमन थी मैंने आपको बोला 5C, एक जो डिफरेंट स्कूल से आपको कंपेयर या क्रिटिसाइज करना चाहिए, कोई भी चीज़ को एनालाइज करना है तो वैसे करिए आप। अब जैसे मेरी कुछ आंसर कॉपीज आपको दिखने मिलेगी, तो आप आंसर कॉपीज में जब मेरे देखेंगे जो मैं आपको चीज़ें बता रही थी कि अगर क्वेश्चन है सपोज 10 मार्क का क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस एज ए मास्टर साइंस, ये क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट दी है, तो मैं यहाँ सबसे पहले याद करूंगी कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है, अरिस्टोटल। तो मैं शुरू करूंगी क्वेश्चन, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ही कंसिडर्ड पॉलिटिकल साइंस एज मास्टर साइंस बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग। तो पहले मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया कि अरिस्टोटल है, फिर जो क्वेश्चन था क्योंकि 10 मार्कर क्वेश्चन है तो डायरेक्टली एड्रेस किया। आप मेरी आंसर कॉपी देखेंगे जब 1A की, तो आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, वहाँ पे मैंने इस तरह से किया है। वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको मेरी टॉपर कॉपी से ताकि समझ में आएगा कैसे मेरी कॉपीज को या किसी की भी कॉपीज को यूज कैसे करना है। फिर मैंने जैसे इंट्रो में शुरू किया, मुझे पता था जहाँ पॉलिटिकल साइंस आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन, मैं एक लाइन लिखूंगी कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, और फिर लिख दूंगी पैरा में कि गार्नर ने लाइन दी थी। तो ऐसे जब मैंने आपको बोला था कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए जो स्कॉलर्स के लिस्ट बुक्स और ये, तो उसमें मैं गार्नर का नाम लिखूंगी, तो मैं उनकी लाइन लिखूंगी कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, ताकि मुझे ये इम्पैक्ट वाली लाइन है जो हम आंसर में कहीं भी लिखेंगे, इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, इट विल गिव एन इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक टच टू योर आंसर्स। फिर वही पॉलिटिकल साइंस कैसे इंटरडिसिप्लिनरी है, डिसीजन मेकिंग में काम आती है, कैसे हम अरेंज कर रहे हैं फिलोसफिकल से लेके हमारे पास बिहेवियरलिज्म वाली अप्रोचेस भी हैं, बहुत वाइब्रेंट डिसिप्लिन है। जो भी हमारे आंसर्स में बेसिकली हमारे नोट्स को, हमारे पास नोट्स हमें उन्हें अरेंज करना है क्वेश्चन के हिसाब से उन सेम नोट्स को। ये चीज़ें मैंने सीखी टॉपर कॉपीज से, शुभ्रा मैम के आंसर राइटिंग स्टाइल से, सिर्फ उनके मॉडल आंसर देख के नहीं, वो जो डिस्कशन कर रही थी उनको देखकर। सो मुझे नहीं पता आप वो खुद डिस्कस करती है नहीं आंसर, बट मेरे टाइम पे वो खुद डिस्कस करती थी एंड इट हेल्प मी अलॉट। सो फिर ऐसे एक क्वेश्चन हुआ। फिर जैसे अब कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आया कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट। अब ओवर डेवलप्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, मैं सीधे यहीं से आंसर नहीं शुरू करूंगी, मैं स्टेट से आंसर शुरू करूंगी कि स्टेट इज द सेंट्रल थीम ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब ये मैंने पहले से सोच रखा था कि स्टेट का क्वेश्चन आएगा, मैं पहले यहाँ से शुरू करूंगी। इट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एज मार्केट टू, जितना इतना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए स्टेट जितना मार्केट इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था। तो ऐसे आप इंट्रो शुरू करेंगे, येट फिर उसके बाद भी देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस। फिर आप 1-2 लाइन आपने जो सेट इंट्रो सोचा हुआ है लिखोगे, फिर इंट्रो में ही आप थोड़ा सा बता दो जो कंसेप्ट है कि किसने किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया था। 4 से 5 लाइन में सारी चीजें हो जानी चाहिए। आप मेरी कॉपी देखेंगे आपको समझ में आएगा।
सो ये 10 मार्क को ऐसे मैंने एड्रेस किया. अब जैसे थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है तो मैं वहाँ पे राइट्स कैसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल कॉन्सेप्ट है लिबरल डिस्कोर्स का, कैसे मॉडर्न और कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है, ये 10 लाइन तो मैं लिखूंगी ही राइट के क्वेश्चन में. फिर कैसे 2 ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल राइट्स हैं, यहाँ से शुरू करूंगी. लाइक एक क्वेश्चन था कि रॉल्स नोशन ऑफ अनएनकम्पर्ड सेल्फ पुट्स एम्फेसिस ऑन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एट द एक्सपेंस ऑफ गुड ऑफ द कम्युनिटी. माइकल सैंडल एक क्रिटिक है रॉल्स की. बेसिकली रॉल्स है तो आपको इतना पता होना चाहिए, रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है. अब माइकल सैंडल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्वेश्चन में, वो कम्युनिटेरियन क्रिटिक की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम यार रॉल्स का इंट्रो देंगे कि रॉल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर 20th सेंचुरी. वो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है. उनकी बुक का नाम लिखूंगी मैं, अपनी शुरुआत में नहीं लिखती थी पर यू शुड राइट कि उनकी बुक का नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस. फिर एक लाइन में लिख दिया कि उन्होंने अपनी बुक का में दिया ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस अ यूनिवर्सल व्यू ऑफ जस्टिस. बस एक स्नैपशॉट दे दिया इंट्रो में, बस इतनी सी बात लिखी. उसके बाद मैंने रॉल्स की थ्योरी लिखी कि रॉल्स का नोशन अब 20 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए मैं रॉल की थ्योरी भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ डायरेक्टली क्रिटिक पे नहीं आ रही हूँ. जो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा माइकल सैंडल उस पर नहीं आ रही हूँ, पहले रॉल्स की थ्योरी दे रही हूँ. और रॉल्स की थ्योरी में उनके सारे कीवर्ड्स आपको बता रही हूँ. जैसे मैंने लिखा था कि रॉल्स नोशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल इंडिविजुअल्स who came in original position. अब ओरिजिनल पोजीशन एक कीवर्ड है, द एग्जामिनर विल सर्च फॉर दैट कीवर्ड, तो आपको लिख के अंडरलाइन करना है उसे. बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल ऑफ इग्नोरेंस फिर से एक कीवर्ड है. टू अराइव एट यूनिवर्सल रैशनल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, फिर से एक कीवर्ड है. दिस इंडिविजुअल्स हैव मेड अ रैशनल चॉइस, ये फिर से कीवर्ड है रैशनल चॉइस, विच इज अनबायस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल. मैक्सिमम प्रिंसिपल फिर से रॉल्स में एक कीवर्ड है. तो एक ही पैराग्राफ में आप देखो मैंने 5 से 6 कीवर्ड यूज कर दिए हैं, सबको अंडरलाइन किया. फिर राज की थ्योरी को वो अपने आप थ्योरी को प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी बोलते थे, क्योंकि फिर उनके तीनों जो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए मैंने वो लिखे. फिर यहाँ पे आप क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन में क्योंकि पूछा है कम्युनिटेरियन क्रिटिक की बात करिए क्वेश्चन में, तो कम्युनिटेरियंस लाइक माइकल सैंडल हैव क्रिटिसाइज्ड रॉल्स यूनिवर्सलिस्ट एंड रैशनलिस्ट अजम्पशन. ये मैंने जब मैं थ्योरी बता रही हूँ रॉल्स की, तो कैसे उसको नेक्स्ट पैरा जो मेरा आने वाला है तो उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने पहले उसी पैरा में लास्ट की 3 लाइन में माइकल सैंडल का बता दिया, ताकि थोड़ा पैरा में कनेक्शंस भी होना चाहिए, फ्लो मेंटेन होना चाहिए आंसर्स का. तो इस तरह से आप फ्लो मेंटेन कर पाओगे. आप थोड़ा सा स्नैपशॉट दे दोगे अगले पैरा में आप क्या बोलने वाले हो, क्वेश्चन से आप कैसे लिंक कर रहे हो. तो अब माइकल आप क्वेश्चन अगर मैं फिर से बताती हूँ, क्वेश्चन था रॉल्स नोशन ऑफ अनएनकम्बर्ड सेल्फ पुट्स एम्फेसिस ऑन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एट द एक्सपेंस ऑफ गुड ऑफ द कम्युनिटी. तो उन्होंने जो रॉल्स है उसका सेल्फ और कम्युनिटी के इस पे जो कॉन्सेप्ट था उस पर क्रिटिसाइज किया. तो मैंने अपने आंसर में यूज किया कि माइकल सैंडल क्रिटिसाइज्ड रॉल्स ऑन हिज कंसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड कम्युनिटी. फिर माइकल सैंडल के पूरी चीज़ें लिखी, पूरा क्रिटिक लिखा, फिर उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, फिर कैसे रॉल्स ने अपनी जो सेकेंड बुक आई पॉलिटिकल लिबरलिज्म उसमें एड्रेस किया इस चीज़ों को. फिर लास्ट में लिखा कि कैसे जो कम्युनिटेरियन क्रिटिक जो आया है, जो क्योंकि मेन क्वेश्चन तो कम्युनिटेरियन क्रिटिक ऑफ रॉल्स पे है ना, तो कैसे उसने रॉल्स की थ्योरी को और बेटर बनाया और एक्सेप्टेबल बनाया है, ये लिखा. फिर साथ में ये भी लिखा कि रॉल्स की जो थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. तो इस तरह से आप कंक्लूड करेंगे. सो 1B के 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. जैसे ना मैंने आपको ये बताया था कि मैं कभी कभी कोई क्वेश्चन एक कोट से शुरू करती थी, ठीक है, तो मैं उसका एप्लीकेशन बताती हूँ. कि एक क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी रिगार्डिंग नेशनलिज्म. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पे तो है ही क्वेश्चन, आप देखो कि नेशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, नेशनलिज्म की थ्योरी पे पूछा है. तो मैंने नेशनलिज्म पे एक लाइन लिख दी शुरुआत में, नेशनलिज्म इज ए बूर्जुआ कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर नहीं बोला था, मैंने ये नोट किया हुआ था मैंने अपने नोट्स में. तो फिर अब ये मैंने लिख दिया. अब मेरे इंट्रो में शुरू करूंगी, उसको मैंने लिंक करने की कोशिश करी ऐसे, जो मैंने एक कोट डाल दिया है और जो मेरा इंट्रो उसको लिंक करने की कोशिश करी ऐसे कि नेशनलिज्म हैज बीन अ हेजेमोनिक स्कूल ऑफ थॉट इन हिस्टोरियोग्राफी. तो ये एक सेट इंट्रो था मैंने जो किया. अब ये हेजेमोनिक स्कूल है, मार्क्सिस्ट हमेशा हेजेमोनिक चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, तो मार्क्सिस्ट अटेम्प्ट टू चैलेंज दिस हेजेमनी बाय गिविंग अ काउंटर व्यू. तो मैंने कोट लिखा, अपने इंट्रो को कोट से थोड़ा कनेक्ट भी किया, इंट्रो को थोड़ा क्वेश्चन से भी कनेक्ट किया, ठीक है. दिस व्यू हैज बीन प्रेजेंटेड बाय M.N. रॉय, ग्राम्सी स्कूल लाइक रंजीत गुहा, भीखू पारेख, थोड़ा स्कॉलर का नाम याद था तो लिख दिया. फिर मैंने वही अपना फिर 10 मार्क का क्वेश्चन था तो सीधे एड्रेस करना शुरू कर दिया कि देयर मेन कंसर्न इज द प्रोजेक्शन ऑफ गांधी एंड INC एज ऑल इंडिया लीडर एंड पार्टी. फिर जो भी पूरी थ्योरी थी वो कर दिया. फिर ग्राम्सी स्कूल ने क्या बोला है, ऐसे सब कर दिया. फिर अब लास्ट में मार्क्सिस्ट स्कूल का क्रिटिसिज्म भी लिखा कि मार्क्सिस्ट व्यूज क्रिटिसाइज एज फीलिंग नैरो इज बीइंग नैरो, तो क्रिटिसिज्म भी लिखा. बट
अब कंक्लूजन में सिग्निफिकेंस भी लिखना था, बट दे हैव मेड द हिस्टोरियोग्राफी मोर डेमोक्रेटिक एंड ब्रॉड बेस्ड बाय गिविंग ऑल्टरनेट व्यूज। अब जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन में जो मैं कोर्ट वाला बोल रही थी, एक और एग्जांपल देती हूँ मैंने कैसे कोर्ट्स यूज की। तो क्वेश्चन आया था, फंडामेंटल राइट्स में बी सेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज सोशल वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी। क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन है, मैं राइट्स से शुरू करूंगी। तो राइट्स के लिए मैंने लास्ट की एक लाइन याद कर ली थी, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी एट इट बेस्ट। ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा में डाला, हेरोल्ड जे लास्की लिखा, उनकी बुक लिखी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ऐसे ही कोर्ट से शुरू कर दिया। ये मैंने उत्कर्ष सर की कॉपी में देखा था। फिर अब मैंने इंट्रो शुरू किया कि फंडामेंटल राइट्स ट्राई टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ सिटीजंस बाय गिविंग देम इनएलिएनेबल सेंस ऑफ डिग्निटी, दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री। मैंने यहाँ पे अपने इंट्रो से भी लिंक किया, अपने क्वेश्चन से भी लिंक किया, अपने कोर्ट से भी लिंक किया इंट्रो को, और अपने क्वेश्चन से भी लिंक किया। अब फिर अपना नॉर्मली शुरू किया कि कैसे क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट्स में बी सेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज सोशल वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी। तो फिर मैंने यहाँ पे शुरू किया क्वेश्चन की लाइन यूज करना कि फंडामेंटल राइट्स रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट आइसोलेशन फ्रॉम सोशल वैल्यूज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल वैल्यूज दोनों को अंडरलाइन किया कि ये क्वेश्चन को मैं यहाँ एड्रेस कर रही हूँ, ये दिखाने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे करके ये लिखा। फिर लास्ट में यहाँ पे फिर ऐड कर दी कंक्लूजन में कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करते हैं सोशल वैल्यूज को, एज वेल एज वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स भी हैं, जो कांट के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव्स हैं। और जब मैं फंडामेंटल राइट्स का दिखा रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करते हैं सोशल वैल्यूज को, तो अपन थिंकर्स में तो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने काउंटर व्यू देते हैं कि कहाँ कहाँ सोशल वैल्यूज को निगेट करके एक सोशल रेवोल्यूशन भी लाया है फंडामेंटल राइट्स में। लाइक हमारी एक टाइम पे सोशल वैल्यू बन गई थी अनटचेबिलिटी, या टाइटल्स हमारे सोशल वैल्यू बन गए थे, पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स ने उनको अबॉलिश किया। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा काउंटर व्यू भी दिया मैंने लास्ट के एक पैराग्राफ में, लाइक प्री कंक्लूजन पैराग्राफ में। अब जैसे 20 मार्क का एक क्वेश्चन अगर डिस्कस करें पेपर 1B का, तो एक क्वेश्चन आया, एक टेस्ट पेपर का एक क्वेश्चन है, यू विल सी दैट इन माई कॉपीज। सो गवर्नर्स ऑफिस इज सुई जेनेरिस। The governor in our system does not function as the constitutional head for the whole gamut of its responsibility. Examine the statement in light of सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। ये क्वेश्चन है, ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। अब 20 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें तो पूरा कॉन्टेक्स्ट कंटेंट सब कुछ सेट करना है, तो हमें थ्योरी भी लानी है 1A की। तो गवर्नर का क्वेश्चन है, तो मैंने बोला था मैं फेडरलिज्म से शुरू करूंगी, तो मैंने शुरू किया, फेडरलिज्म इज एन important feature of countries with written contract. It gives scope for managing diversity and large size. In this context, governor is considered one of the keystones of this system. इस तरह से मैंने इसका इंट्रो शुरू किया। फिर मैंने अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस आर्टिकल में गवर्नर की बात करी है, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है। फिर नेक्स्ट उसमें सरकारिया कमीशन ने क्या क्या बोला है, वहां से शुरू किया। फिर दूसरे थिंकर्स की बात करी, फिर लास्ट में गवर्नर का क्रिटिसिज्म बताया, फिर क्या सिग्निफिकेंस है उस ऑफिस का ये भी बताया, और क्वेश्चंस की लाइन को यूज किया। लास्ट में जब मैं एंड करी थी आंसर को कि एट लास्ट देयर इज अ नीड ऑफ एमिनेंट पर्सन टू इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल गैमेट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑल गैमेट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चन की लाइन है जो मैंने आंसर में यूज करी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आंसर लाइक द क्वेश्चंस। अब इसी तरह आप मेरी जो 2A 2B की जो कॉपीज है उनको एनालाइज कर सकते हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको अप्रोच बताई है, 1A की अलग, 1B 2A 2B, वो कैसे मेरे आंसर्स में आपको दिख रही है। आपको ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ इसकी मैंने एक PDF बना के कि मैंने जो चीज़ें बोली है, जो मेरी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी है 1A 1B 2A 2B की अलग अलग मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपको मेरे नोट्स भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट आई हैड फॉर PSIR. So thank you.